Hello students, welcome back to our channel and I am your physics lecturer. In this today's video, we'll move ahead to study the uses of dimensional analysis. In my previous video, I have explained the first use of dimensional analysis. That is conversion of one system of unit into another system of unit, and we have seen its application. We had solved one problem on that. Okay, तो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड यूज़ क्या है. वी विल सी नाउ द सेकेंड यूज़, दैट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन. मतलब एक फिजिकल रिलेशन दिया जाता है और उस फिजिकल रिलेशन को हम डायमेंशनली चेक करते हैं. ठीक है, कि वो जो रिलेशन दिया गया है वो करेक्ट है या नहीं, वो हम डायमेंशनली उसको चेक करेंगे. I mean to say, we need to check the physical relation whether it is dimensionally correct or no. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ರಿಲೇಷನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ 3 marks. Okay, every year they'll ask this question, this sort of question for 3 marks. They may ask you to check the physical relation, given physical relation dimensionally correct or incorrect ಅಂತ question ಕೇಳ್ಬೋದು. So get practice to it. Okay, तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं. तो मैंने एक पहला क्वेश्चन ले लिया है इधर. The question is check the dimensional consistency in case of the following equation will be given. Okay, f into s equal to half mv square minus half mv naught square, where symbols have their usual meanings. मतलब एक जो एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, इस इक्वेशन को आप चेक करोगे, इसी को हम फिजिकल रिलेशन कहते हैं बच्चों. दिस इज नथिंग बट अ फिजिकल रिलेशन. ओके, तो इस फिजिकल रिलेशन को अब हम चेक करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लगाकर हम चेक करेंगे. See students, what question says is that they have already given a physical relation, this equation. Okay, this equation we need to check it whether it is dimensionally correct or no. So for that what we need to do is we need to write the dimensional formula of each quantity, each physical quantity. यहाँ पर देखो F यानी फोर्स है, where symbols have their usual meanings यानी जो भी हमने symbols अभी अब तक यूज़ किए हैं वही मतलब है इनका. ठीक है, वही सिम्बॉल्स ये रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं. आई मीन टू से द symbols what they have given here, they have their usual meaning. What does it mean? That F represents force, S represents displacement, M represents mass, V represents the final velocity, and here also M represents mass and V naught represents the initial velocity. So this is the meaning of where the symbols have their usual meanings ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಅದು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಆ ನೊಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, I'll make you to understand it step wise. First step is you need to write the dimensional formula of all the physical quantities present in this equation. इस इक्वेशन में, इस फिजिकल रिलेशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर लिया गया है, पहले हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. ओके, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುವಂಥ
ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲೆ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್. what it represents? It represents force. ठीक है. नेक्स्ट आता है यस. यस क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, जो भी हो, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, तो ले लो डिस्टेंस. ठीक है. बाद में यम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू. बाद में वी और वी एंड लेते हैं. ठीक है. वी एंड वी नॉट, ये जो है ये क्या है? ये वी यानी इधर इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, वी नॉट इधर फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है. तो ये क्या है? ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. मतलब इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा. अल्टीमेटली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हम इधर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी का लिखेंगे. अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट दिया गया है, हाफ. ठीक है. 1/2 ये क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, एक नंबर है. ठीक है. नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं फिजिक्स में, जो चेंज ना हो, जो फिक्स हो. ठीक है. तो हाफ तो इधर फिक्स होगा बच्चों, वो तो चेंज नहीं होगा. तो जो हाफ है इधर, एक नंबर जो है, इज डायमेंशनलेस. मैंने कहा था पिछले वीडियोस में कि डायमेंशनल एनालिसिस कुछ हद तक वो फेल हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता. ठीक है. डायमेंशनल फॉर्मूला हम कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते बच्चों, तो ये इधर कुछ हद तक फेल हो जाता है. ठीक है. हाफ इज अ डायमेंशनलेस, मतलब डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसे लिख देते. तो अभी हमको पता चल गया एफ क्या है, एस क्या है, एम क्या है, वी और वी नॉट क्या है. ठीक है. तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग. तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L1 M1 T⁻⁻². ठीक है. और डिस्टेंस का तो पता ही है, L1 M0 T⁻⁴. मास का भी पता है, L0 M1 T⁻. ठीक है. अभी वेलोसिटी का देखते हैं, L1 M0 T⁻⁻1. ठीक है. समझ में आया फर्स्ट स्टेप? आई होप ये बहुत आसान है. चलो सेकेंड स्टेप देखते हैं. विल सी नाउ सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में आपको यही फिजिकल रिलेशन को कॉपी करना है. नाउ वी विल रीराइट दिस इक्वेशन. व्हाट इज इट? F into S equal to half mv² माइनस हाफ mv0 स्क्वायर. उसी इक्वेशन को आप दोबारा लिखोगे सेकेंड स्टेप में. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे? ये जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर पहले लिख कर रखा है, उन डायमेंशनल फॉर्मूला को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. इन द सेकेंड स्टेप व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल रीराइट द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन. ये गिवन इक्वेशन है अपना, या फिजिकल रिलेशन बोलो, सही होगा. ठीक है. वी विल राइट दिस गिवन इक्वेशन एंड वी विल सब्स्टिट्यूट द डायमेंशनल फॉर्मूला इन ईच क्वांटिटी. ठीक है. तो अभी एफ का देखो, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो लिखना है. एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो इधर, इट इज L1 M1 T⁻⁻² इंटू है इधर. ठीक है. अभी यस का लिखो. यस का क्या है? L1 M⁻⁴ T⁻⁴. नेक्स्ट इक्वल है तो इक्वल लगा देना. हाफ आप लिख सकते हो या छोड़ भी सकते हो. Since it is a dimensionless quantity, so no need to write these halves. Okay? Constants को लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो डायमेंशनलेस है बच्चों, तो हम इस हाफ को स्किप कर देते हैं. अभी नेक्स्ट किसका लिखेंगे हम? मास का लिखते हैं. ठीक है. तो मास का क्या है? L0 M1 T⁻⁴.
0 इनटू v है। अभी v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है देख लो, l रेस टू 1 m रेस टू 0 t रेस टू -1 होल स्क्वायर है बच्चों इधर, ठीक है, होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टेप। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट इज माइनस साइन को लिखना है, माइनस साइन लिख लो। अभी फिर से हाफ को छोड़ देना है क्योंकि वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट यम आएगा, तो यम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, l रेस टू 0 m रेस टू 1 t रेस टू 0 इनटू नेक्स्ट कौन सा है, अभी वी नॉट स्क्वायर वेलोसिटी का है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसी की तरह लिख लो, L1 m रेस टू 0 t रेस टू माइनस होल स्क्वायर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखो वी नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा तो हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, अभी देखो इस स्टेप को अभी सिंप्लीफाई करेंगे। बेस बेस सेम है बच्चों, बेस तो लिख लेना, यम यम लिख लेना, टी टी लिख लेना। अभी क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो यल का पावर ऐड कर देना, 1 + 1 कितना हुआ 2, स्क्वायर ब्रैकेट डालो। स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप मिस करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट लगाने वक्त। हाँ, अभी यम का देखो, यम 1 + 0 1 ही रहेगा। टी का देखो, -2 + 0 -2 ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू इधर आ गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको इस स्टेप को कैसा है वैसा ही लिख लेना, क्योंकि इसको सॉल्व करना है अभी, क्योंकि स्क्वायर है, राइट। हियर वी हैव अ होल स्क्वायर, हेंस वी विल सॉल्व दिस फर्स्ट। इनटू देखो अब स्क्वायर है तो अब हम कैसे करेंगे, 1 × 2 पहला यल का 1 × 2 करना, 2 ध्यान देना इधर, यम लिख लो 0 × 2 0। ठीक है, टी का भी t रेस टू -1 × 2 -2। ठीक है, समझ में आ रहा है। a रेस टू m होल रेस टू n, तो क्या आएगा आंसर, a रेस टू m × n। एक्सपोनेंट्स पढ़ा है ना हमने 10th में, तो वही अप्लाई करना है। समझ में आ रही है बात। अभी माइनस लगा देना। इस स्टेप को हम इस फॉर्मूला को जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अभी इसका ध्यान देना, यल 1 × 2 1 × 2 किया, 1 2 ज़ा 2, m रेस टू 0 × 2 0। इसका t का भी t रेस टू -1 है, -1 × 2 -2 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अच्छा, अभी ये तो सेम लिखेंगे, यहाँ पर हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो वी विल राइट दिस स्टेप एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो अभी पहला इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में इस ब्रैकेट को, पहले इस ब्रैकेट को देख लेना। प्रोडक्ट है बच्चों इधर, तो पावर को क्या करना है, ऐड करना है। पहले एल का देखते हैं, 0 + 2 2। अभी एम का 1 + 0 1। टी का भी 0 + -2 बनेगा। ठीक है, 0 + -2 तो आएगा क्या, -2। ठीक है, ए साइन, अभी ए साइन इधर लगा देना। सिमिलरली इसका भी कर लेना। अभी यल का, पहले यल का देखो, यल के साथ ही करना है, यल और एम के साथ नहीं। ठीक है, यल का 0 + 2 2। एम का भी 1 + 0 1। अभी बचा टी, 0 + -2 अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, L2 यहाँ पर भी l रेस टू 2, यहाँ पर भी l रेस टू 2। ठीक है, यहाँ पे m रेस टू 1, यहाँ पर भी m रेस टू 1, यहाँ पर भी m रेस टू 1 है।
and here also t raised to minus 2, here also t raised to minus 2, here also t raised to minus 2. That means your LHS side has become equal to your RHS side. तो क्या बना बच्चों, ये है अपना लेफ्ट हैंड साइड और ये है अपना राइट हैंड साइड. तो दोनों इक्वेशन, दोनों फॉर्मूला, सॉरी इक्वेशन नहीं, दोनों फॉर्मूला जो LHS साइड पर है और RHS साइड पर है, दोनों के पावर जो है बच्चों वो सेम है. ठीक है, सेम है. तो ये कौन सा प्रिंसिपल बना? दिस इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, जो हमने पहले पिछले वीडियो में देखा था. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या कहता है? A इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई, सी इक्वल टू जेड हमने किया था ना, याद है? तो वो प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रही है. ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का थोड़ा कुछ स्टेटमेंट बताया था. ठीक है, तो अब हमारा इस स्टेप में क्या हुआ? दिस ओबेज, लिखेंगे दिस ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ, ए ओबे कर रहा है अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को. देखो बच्चों, ये दोनों इक्वल आना है. LHS साइड और RHS साइड ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡು ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. राइट, यू कैनॉट माइनस दिस टू, इसको ऐसे ही रखना है. ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होना है बच्चों? LHS साइड के जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके ऊपर जो डायमेंशंस है वो इस तरफ के ही डायमेंशनल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो लगाए हुए डायमेंशंस है दोनों को सेम आना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर देखो 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है. एल का देखो पहले, बाद में एम का 1 है, 1 है, 1 है, टी रेस टू -2 है, -2 है, -2 है. तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को ओबे कर रहा है? हाँ, कर रहा है. तो वो सेंटेंस लिखेंगे हम, दिस ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी. तो इस स्टेप को आपको लिखना ही है, लिखना ही. अगर आप ये सब करते हो और इस स्टेप को आप नहीं लिखते हो तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को ओबे कर रहा है तो तब हम कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? सिंस the dimensions of the fundamental physical quantity या यूनिट्स भी बन सकते हैं of each term is same, so the relation, कौन सा रिलेशन? F इंटू एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट. तो यहाँ पे आपको एक बात कंक्लूड करना है बच्चों कि कब ये इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमको मिलता है, कब वो डायमेंशनली करेक्ट होता है? जब वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को ओबे कर रहा हो या दोनों तरफ LHS साइड के और RHS साइड के डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इधर वो अगर सेम है, ईच टर्म में सेम है, तो तभी वो डायमेंशनली करेक्ट कहलाता है, वरना नहीं. अगर ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं, इधर कुछ अलग आया, इधर कुछ अलग डायमेंशंस आ रहे हैं, तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है बच्चों. ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड use of dimensional analysis. So here I have taken another equation. Check the correctness of the equation. So the question can also be asked like this. Check the correctness of the equation x equal to v naught into t plus half at square where symbols have the usual notations.
तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने और एक एग्जाम्पल लिया है इधर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूलेज लिखेंगे, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ। तो पहला क्या है इधर, एक्स। एक्स यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। देखो आपको कैसा पता चलेगा ये सभी के ए इक्वेशन जो भी इसमें सिंबल दिया है वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। देखो बच्चों आगे आप लोग इस सभी इक्वेशंस जो भी हमने ले लिया है इधर, वो आगे जाकर आप सीखोगे, उन इक्वेशंस के बारे में आप सीखोगे, इसलिए आपको पता लगेगा। ये फिलहाल ये फर्स्ट चैप्टर में आ रहा है इक्वेशन, तो ये थर्ड चैप्टर में इस इक्वेशन को आप डिराइव करोगे, ठीक है, राइट। तो वी नॉट क्या है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, ठीक है। टी इज टाइम इन दिस केस, इन दिस इक्वेशन, ठीक है। और ए भी आ रहा है इधर, ठीक है, ए इज एक्सेलरेशन इन दिस इक्वेशन। तो अब आगे चलकर इस इक्वेशन को डिराइव करोगे, इसलिए हमको ऑलरेडी ये पता है, ठीक है। हाफ इज अगेन इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब चलो कांस्टेंट, ठीक है। तो x यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख लो, l⁻⁴ m⁻�0 t⁻�0। वेलोसिटी का l⁻⁴ m⁻�0 t⁻⁻1 है। टाइम का l⁻⁴ l⁻�0 m⁻�0 t⁻1 है। एक्सेलरेशन का है l⁻⁴ m⁻�0 t⁻2 है बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमने लिख लिया। अभी सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, आप उसी इक्वेशन को आप कॉपी करोगे सेकेंड स्टेप में। नाउ x इक्वल टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ AT² है, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉपी करोगे और ये सभी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओगे। x का ये वैल्यू इधर लगाओगे, वी नॉट का इधर लगाओगे, टी का इधर लगाओगे, ए का लगाओगे और टी का लगाओगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं फिर। x का क्या है बच्चों, देखो l⁻⁴ m⁻�0 t⁻0 है, इज इक्वल टू वी नॉट का l⁻⁴ स्क्वायर ब्रैकेट m⁻�0 1 है, ये t⁻⁻1 है, इंटू टी है, इंटू टी, इधर कुछ भी नहीं है मतलब इंटू, ठीक है, इंटू टी का लिखोगे आप अभी l⁻⁴ m⁻�0 t⁻1 प्लस लिखो। हाफ तो डायमेंशनल लेस है तो उसको हटा देंगे हम, बचा क्या, ए का लिखो आप अभी l⁻⁴ m⁻�0 t⁻2 इंटू टाइम को देखो अभी l⁻⁴ m⁻�0 t⁻1 द होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर लिखना है। अच्छा ये तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं है, ये जैसा है वैसा ही लिख देना LHS साइड का। अभी देखो RHS साइड में क्या क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। ये प्रोडक्ट है बच्चों, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। एल का देखो पावर, देखो पावर को क्या करना है, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड करोगे, 1 + 0 1। अभी m का 0 + 0 0 ही रहेगा, t का -1 + 1, ठीक है, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, -1 + 1 क्या हुआ, 0 हुआ, तो ये रेस टू 0 बन गया, प्लस ए सिंबल इधर लगा देना। फिर l⁻⁴ m⁻�0 t⁻2 इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि इधर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो करो, पावर अंदर लेके मल्टीप्लाई करो, 0 × 2 0, 0 × 2 m का अभी 0, अभी t का 1 × 2, ठीक है, 1 × 2 है 2, ओके। अच्छा so we'll write this LHS side as it is, l⁻⁴ m⁻�0 t⁻2 equal to
and since here addition is there, this part you will write it as it is. L raised to 1 m raised to 0 t raised to 0 प्लस जब भी प्रोडक्ट हो तभी ही आपको उनके पावर्स को ऐड करना है. I have seen some students, they will add this and this. See, you cannot do that operation here because see here we have addition sum. तो कभी करना है पावर को ऐड कब करना है बच्चों? ओनली ड्यूरिंग इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट. मल्टीप्लिकेशन हो ही तभी आपको उनके पावर्स को ऐड करना है. अभी ऐसा मत करना है इसको और इसका पावर ऐड करके रख देंगे, नहीं, दैट्स अ रॉन्ग वे. तो ये प्रोडक्ट है इधर, तो इनके पावर्स हम ऐड कर सकते हैं. तो लिखो अभी एल रेस टू, एल का देखो पहले 1 + 0 1, एम का 0 + 0 0. अब ये देखो -2 + 2 एडिशन करना है हमको. -2 + 2 क्या बन गया? 0. सो t raised to 0. ठीक है. Now, and I have seen some of the student they will solve this step also. No, this is a wrong way. यहाँ पे एडिशन आ गया, बस हो गया, काम खत्म. और इनके पावर को लेकर ऐड करना फिर सोल्यूशन करना, ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, तो यहाँ तक ये ख़त्म हो गया सोल्यूशन. तो अभी चेक करना है कि यल का पावर इस इक्वेशन में सेम है. इधर देखो यल रेस टू 1, इधर भी 1, इधर भी 1 सेम है. m रेस टू 0 m रेस टू 0 m रेस टू 0 t रेस टू 0 t रेस टू 0 t रेस टू 0. तो ये बन गया अपना RHS साइड. दिस एंटायर इक्वेशन बिकम्स RHS साइड. दिस इज LHS साइड. क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, तो ईच टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए. तो ये क्या सेम है? हाँ है. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी इधर ओबे कर रहा है ये इक्वेशन. ओके, सो दिस इक्वेशन ओबेज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, राइट. हेंस बिकॉज क्योंकि ईच टर्म का जो डायमेंशन है LHS साइड हो या RHS साइड के, ईच टर्म के डायमेंशंस जो है वो सेम है. ठीक है, वो सेंटेंस आपको लिखना है. देयरफॉर द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? x = v0 × t + ½ at² इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, तो ये बन गया इसका सॉल्यूशन. So we'll see another type of question. Check the correctness of the equation F = ma into s, where m is mass, a is acceleration, s is the displacement and f is a force. So ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो लोग ये जो नोटेशंस है उनका यूजुअल मीनिंग भी वो दे चुके होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों कि हम पहले डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ, पहला है फोर्स. ठीक है, फोर्स का नोटेशन F है. तो F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? L raised to 1 t raised to -2 है. ठीक है, और नेक्स्ट है एक्सेलरेशन. A दिया गया है नोटेशन, वो जो नोटेशन देते हैं वही लिखना है. ठीक है, अपने हिसाब से कुछ नहीं. L raised to 1 m raised to 0 t raised to -2. यस यानी डिस्प्लेसमेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, तो L raised to 1 m raised to 0 t raised to 0. नेक्स्ट है, ठीक है सभी लिख लिया. F मास का नहीं लिखा. ठीक, तो m है मास, तो मास का बन गया L raised to 0 m raised to 1 t raised to 0. ठीक है, तो अभी सेकेंड स्टेप में इक्वेशन को ले लो. F = ma × s. ठीक है, तो अभी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लगा देना.
एल रेस टू 1 एम रेस टू 1 टी रेस टू -2 इक्वल टू मास का लगा देना एल रेस टू 0 एम रेस टू 1 टी रेस टू 0 इंटू ये सारे प्रोडक्ट है इधर। एक्सेलरेशन का देखो एल रेस टू 1 एम रेस टू 0 टी रेस टू -2, डिस्प्लेसमेंट का एल रेस टू 1 एम रेस टू 0 टी रेस टू 0। यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसा है वैसे लिख देना, ठीक है। अभी देखो ये तीनों प्रोडक्ट है, अभी इधर भी इंटू, ठीक है, प्रोडक्ट है तो यल 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 लिख ले। तो पावर को ऐड करो 0 + 1 + 1 2 एम रेस टू 1 + 0 + 0 1 टी रेस टू 0 प्लस ऑफ -2 + 0 तो बचा क्या -2, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, क्या ये दोनों साइड में ये LHS है अपना और ये RHS है, क्या यहाँ पर डायमेंशंस दोनों तरफ सेम है? चेक करो। एल रेस टू 1 है इधर, पर इधर एल रेस टू 2 आ गया, एम रेस टू 1 है इधर, एम रेस टू 1 है इधर, एल रेस टू 2 इधर, एल रेस टू। तो दैट मीन्स द डायमेंशन ऑन LHS साइड एंड RHS आर नॉट इक्वल। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट ओबेइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओबे नहीं कर रहा है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। हेंस गिवन इक्वेशन F = MAS इज नॉट डायमेंशनली ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन, आपको पता चल गया होगा। अगर वो डायमेंशनल इक्वेशन नहीं है तो कैसा आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने कर दिया। तो ये देखो पावर अलग अलग आएंगे, LHS साइड का और RHS साइड का, तो वो अलग अलग आएंगे तो वो ओबे नहीं करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, तो तभी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, ओके। तो अगले वीडियो में अगले एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।